सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, और तख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, और तख गुरु निस्तारे। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी प्रख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हाँ करी वख्यान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हाँ करी वख्यान। परम सम्मानियो सतगुरु की साजी निभाती साध संगत जी, बड़े ही बड़भागी हाँ जूम ऐप राही सत्संगी रूप दे विच जुड़ बैठण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दे गुरु कौन सन? सतगुरु जी ने सानू किस गुरु दे लड़ लाया है? सबद गुरु की महानता है। आओ साध संगत जी, शबद गुरु की महानता बारे पावन विचार आरंभ करने तो पहला समूह संगत गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख ने जलती सब पृथ्वी नूं ठंडा ठार शीतल करन दे लई सतगुरां दे शरीर राही जो उपदेश बख्शिश कीता, उसनूं शबद गुरु करके मन्निया गया। क्योंकि गुर में आप समोए शब्द वर्ताया, गुर में आप समोए शब्द वर्ताया का कथन पावन बाणी विच दर्ज है। गुरबाणी का आशा या मनोरथ कोई फिरका कोई धड़ा तैयार करना नहीं, बल्कि एक ऐसा मनुख जिसनों संत गुरमुख सचियार आदि नाम नाल अंकित किया गया है, बनाना है। गुरबाणी या गुरु शब्द नाल मनुख के मन की एक खास अवस्था बनाती है कि मनुख का फिरका वर्ग अति खेत्र भावें कोई भी हो, भावें वो जोगी मुला हो, भावें वो जोगी हो, जैनी हो, भावें वो हिंदू वैष्णव हो, पर हर मनुख अपने थां ते बैठा होया सदाचारक पत्थर वाला हो। वह मनुख भावें उसका किता कोई भी हो, किसी भी फिरके दे नाल किसी भी मत दे नाल वो संबंध रखने वाला हो, उसका किता भावें वो किसान हो, सौदागर हो, भावें वो दुकानदार हो, चाकर हो, बादशाह हो, गरीब हो, पर उसके अंदर एक विशेष इंसानी सदाचारक सर्वसानी भाईचारक
ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਧਾਓ, ਪਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟਾਰ, ਘਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦਰਸ਼, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੰਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ। ਮਾਰਗ ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਦਾਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਸਤਾਰ, ਉਸਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟਿਆਨਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੀਆਪਣ ਜਾਂ ਆਤਮਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਘ੍ਰਿਣਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣ। ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ, ਹਰ ਧਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਵ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਾਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕੇ ਬੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਨਿਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ, ਧਰਮ ਭੰਗ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸਤ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
कि जिहड़े उस वेले दा कासी है, कासी होय के बह न्याय, फिर तस्वी करे खुदाए, वटी लेके हक गवाए, जे को पूछे ता पढ़ सुनाए। जहाँ कल कल वाली सरान बेड़ी काजी कृष्णा होगा, आर्थिक लुटदा नमूना साढ़े सामने है। राजिया अंदर साहा सुरत गवाइयां, जो राजियां की हालत है, राजा साहा सुरत गवाइयां रंग तमाशे चाहे, बाबर बाणी फिर गई कोई न रोटी खाए। बाबर बाणी फिर गई कोई न रोटी खाए, पत्थर तक निगार आ चुका है। संसार का एक नियम है कि संसार के विच जिहड़ी वस्तु जिस सामग्री तो होंद विच आई है, जिस सामग्री तो उसकी बनावट हुई है, बनाई गई है, अगर उसके विच कोई डिफेक्ट आउंदा है, अगर उसके विच कोई खराबी आउंदी है, तो उसनों उसे सामग्री तो ठीक किया जा सकता है। जिवें गारे मिट्टी का मकान है, अगर उस मकान के विच कोई निगार कोई गिरावट आउंदी है, तो उसनों केवल ते केवल गारी मिट्टी नाल ही ठीक किया जा सकता है। जेकर मकान की उसारी कंक्रीट, सीमेंट ते सरिया दे नाल हुई है और उस मकान के विच कोई डिफेक्ट आउंदा है, कोई निगार आउंदी है, कोई गिरावट आउंदी है, तो उसनों केवल ते केवल कंक्रीट, सरिया, सीमेंट के नाल ही ठीक किया जा सकता है, किसी होर वस्तु नाल नहीं। इसी तरह यह मनुख जो उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म तो पैदा होया है, ये समाज, ये मनुख कीता फसाओ एको कवाओ, जो इस एक अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के हुक्म तो सृष्टि सृजना हुई है, जो अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म के संसार में आया है, उत्पत्त पढ़ लो शब्द होवे, जीवन या समाज साढ़े चारे पक्षां विच जिहड़ा मनुख उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म के विच आया है, उत्पत्त पढ़ लो शब्द होया है, ते जेकर इस समाज के विच, इस मनुख के जीवन के विच अगर कोई निगार, कोई गिरावट आउंदी है, भावें समाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या धार्मिक तौर पर, किसी भी पद्धर के विच, किसी भी खेतर विच अगर गिरावट आउंदी है, तो साहिब जी समझाउणा करे ने, साची लिवै बिन देह निमाणी, कि इसनों अकाल पुरख वाहिगुरू के शब्द के नाल ही ठीक किया जा सकता है, शब्द के नाल ही इसनों सवारिया जा सकता है, शब्द के नाल ही इसके जीवन नूं, इसके पद्धर नूं उच्चा चुकिया जा सकता है, होर कोई तरीका नहीं। साहिब जी फरमाउंदे ने, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजो, देह निमाणी लिवै बाजो, क्या करे बेचारिया, तुद बाज समर्थ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया, इस नोहर थां नाही, शब्द लाग सवारिया, इस नोहर थां नाही, शब्द लाग सवारिया, केवल ते केवल शब्द के नाल ही इसके जीवन को उच्चा चुकिया जा सकता है। सो गुरु साहिब जी ने, गुरु नानक साहिब महाराज ने सारी ही लुकाई को शब्द के नाल जोड़िया है। गुरु नानक साहिब महाराज ने सारे संसार का रटन किया है, जिथे जिथे भी गए गुरु साहिब जी ने शब्द उच्चारण किया। भूमिया वर्गे चोर, सज्जन वर्गे ठग, जिन्होंने गुरु साहिब जी ने शब्द के नाल सिंगारिया। बेशक सज्जन ठग है, वो ठगियां करता है, उसने धर्मशाला भी कायम की हुई है, आए गए मुसाफिरों की वो सेवा भी करता है, लेकिन रात में जो मुसाफिर सो जाते हैं तो वो लोगों को लुट लेता है। गुरु नानक साहिब महाराज जो सज्जन कोल पहुंचे ने, साखी आप जी ने बड़ी वारी श्रवण की हुई है। जब गुरु साहिब जी उस सज्जन कोल पहुंचते ने, शाम का वेला होता है, तो साहिब जी शब्द उच्चारण करते हैं, सज्जन सही नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगई तिथे खड़े दिसन। हे सज्जन, तू लिबास भी सोहना पाया हुआ है, महात्मा वाला पाया है, सोहना लिबास पाया है,
लोगों की सेवा भी करता है, पर तू रात को लोगों को लुट लेंदा है। तेरा जिहड़ा जीवन का पत्थर है वो थले डिग चुका है। तेरे जीवन के विच एक गिरावट आ चुकी है। तेरा मेल उस परमात्मा के नाल नहीं हो सकता। तेरा सारा जीवन व्यर्थ है। तू सचमुच का सज्जन बन। असल सज्जन प्रभु परमात्मा है। उसके वो जो परमात्मा के गुण ने सचमुच तेरे अंदर आने चाहिए। सज्जन सही नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगई तिथे खड़े सन। ये शुभ गुण तेरे नाल जाणगे। जदों सज्जन ने इस शब्द सुनिया अंदरला कंब गया। गुरु के चरणों में ढह पिया है। साहिब जी ने आईना विखाया, सजन तेरा जीवन किस तरह का है? जिवें कहंदा भांडा है, उजल केहा चिलकना, बहुत सोहना लगता है, पर जब बड़े लिशकारे मारता है, पर जदों धोंदे आ, जितनी बार धोंदे आ उन्नी ही कालख उहदे विचों निकली जाती है। तेरा तो यह जीवन उस कालख, उस कहंदे भांडे वर्गा है। उजल केहा चिलकना, घोटम कालनी मस, धोतिया झूठ न उतरी। जे 100 धोवा देसे पावा उन्हें 100 वारी धो गई। तेरा तो जीवन उस बगले वर्गा है, वेखण नूं उत्साह जागदा है, पर जदों कोई डड्डी मच्छी नेड़े आउंदी है, कोई डड्डू मच्छी नेड़े आउंदी है, उन्हें झट करके खा जाता है। वेखण नूं उत्साह जागदा है। बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन, वस्त ओदा वासा भी तीर्थां है ते है। घुट घुट झीयां खावणे बग्गे ना कहिए। साहिब जी के कहते ने तेरा जीवन सिमल के दरखत वर्गा है। सिमल का दरखत बहुत सोहना, बहुत लम्मा है, फुल भी बड़े सोहने ने, फल भी आए ने, पर फल फिरके फुल बगो के कम न आवे। सिमल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुच, कोई जे आवे आस कर जाए निरासे चित। फल फिरके फुल बगो के कम न आवे। इस सज्जन गुरु साहिब के चरणों च ढह पिया है। ते ये शब्द उस सज्जन वास्ते नहीं, साडे जीवन ते भी ढुकदा है। साडे जीवन ते भी ढुकदा है। कई बार असीं आखदे हां कि साडा बाणी ते मन नहीं लगदा। शब्द असीं पढ़दे हां, बाणी पढ़दे हां ते साडा मन नहीं लगदा। ते गुरु साहिब जी ने समझाउणा कीता है कि जेकर तुसीं भूत विच जिउंदे हो जां भगत विच जिउंदे हो ते भूत दियां चिंतावां, भगत दियां आसां ये मन नूं टिकण नहीं देंदी। प्रजेंट दे विच जीना है, वर्तमान दे विच जीना है। वर्तमान दे विच सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे जिंद। जदों असीं वर्तमान दे विच मन करके गुरु नाल जुड़दे हां, मन करके बाणी नूं पढ़दे हां, विचारदे हां, ते मन दियां जिहड़ियां चिंतावां ने वो दूर हो जांदियां। गुरु साहिब जी ने जो सज्जन को उपदेश दिता है, ये उपदेश साडे वास्ते भी है, साडे ते भी ढुकदा है। बेशक वो ठगियां करदा सी, इतिहासकारां ने उसनूं सज्जन शाह करके लिखिया है। उस दिन तो उसने ठगी छड़ दी, चोरी छड़ दी। सचमुच गुरु के शब्द की कमाई की, शब्द को हृदय में वसा करके वो सज्जन शाह बनया। उस इलाके दे विच उसने प्रचार किया है, प्रचारक था गुरु साहब जी ने। भूमिया चोर पावे चोरियां करता है, गुरु का शब्द सुनिया ते उसने जीवन की तो शब्द की कमाई की। गुरु साहब जी ने सारे संसार को शब्द नाल जोड़िया। सिद्धां दे नाल गोष्ठ हुई। गुरु साहब जी पहुंचे ने सुमेर पर्वत पे। बड़े सारे सिद्ध लोग हैं। हुण सिद्धां दे नाल गोष्ठ हुई। सिद्धां ने सोचा ये बच्चे की उम्र बड़ी छोटी है, ज्ञान कितों प्राप्त होया? पुछदे ने गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं, कवन आरंभ कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। तेरा गुरु कौन है? तेरा गुरु कौन है? तू चेला किसका है? ते गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जवाब दिता है, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुर तुम चेला। मेरा जो गुरु है वो शब्द है, मेरा गुरु शब्द है। देही करके ना ही मेरा कोई गुरु है, ना ही देही करके मेरा
कोई चेला है, ना ही मैं किसी का चेला हाँ ते ही करके। पर शब्द मेरा गुरु है ते सुरत चेला है, शब्द गुरु है। सो गुरु साहिब जी का भी गुरु शब्द है। गुरु साहिब जी ने इसे शब्द के लड़ लाया है ते इस शब्द ने मनुख के जीवन के हर खेतर विच अगुवाई की है। इस गुरु शब्द ने जीवन के हर पक्ष नूं अगुवाई बख्शिश की है। आम लोग धर्म नूं केवल रसम ਜਾਂ ਵਾਹਿਰੀ ਦਿਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, पर गुरबाणी ने इसनूं मनुखी कर्तव्य ਜਾਂ असूल मन्निया है। साहिब जी के पावन वचन जो हर थां ते हर समय लागू होंदा है। गुरबाणी भी साहिब जी के वचन ने एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमुत जुग जुग पूरा होई। एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमत पूरा जुग जुग सोई, गुरमत पूरा जुग जुग सोई। साहिब जी बख्शिश करते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर। भाव हरि का नाम सब तो निर्मल कर्म है। सो गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं कि जिहड़ा समाज जातां बातां विच ऊंच नीच के भेदभाव के खेरू खेरू होया पिया है, जिस समाज के विच बहुत सारे वितकरे ने, जिस समाज के विच मनुख नूं मनुख नहीं समझिया जाता, जिसनूं चार जिहड़ा खेतरां विच वंडिया होया है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र। जो ऊंच नीच जात पात के होर कई जिहड़े वितकरियां दे विच वंडिया होया समाज दे विच जो बखेड़ा पिया होया है, गुरु साहिब जी ने गुरु शब्द के राही साढ़े सामने एक सिद्धांत दिता। गुरु शब्द की रोशनी, गुरु शब्द का चालन, गुरु शब्द का ज्ञान गुरु साहिब जी ने बख्शिश किया है। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जिथे ज्ञान है उत्थे ही धर्म है। गुरु साहिब ने यह अगवाई बख्शिश की, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होबो जोड़ी, गुरमुख वैसो सभा विछाए। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए। जो तुहाडे मन दे विच दुबदावां ने उसनूं गुरु दे शब्द दे कोल आकर के दूर करो। दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होबो जोड़ी, गुरमुख वैसो सभा विछाए, गुरमुख वैसो सभा विछाए। अते साहिब जी ने समझाना किया है कि सारी खलकत उस एक अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा ने पैदा की है। इसके विच ना कोई छोटा है ते ना ही कोई बड़ा है, सारे ही उस अकाल पुरख निरंकार के स्वरूप ने। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग पजिया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। सो गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, बुरा भला को किसनों कही है, सगले जीव तुम्हारे। सारे जीव तो उस मालिक ने पैदा किए ने, ते किसनों चंगा ते किसनों माड़ा आखी। बुरा भला को किसनों कही है, सगले जीव तुम्हारे। भाव सारे जीव उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा ने पैदा किए ने। ते साहिब जी भाईचारक की सांझ समझाते हुए बख्शिश कर रहे हैं, मिल वेख की महिमा बर न सको। जिहड़े मिल बैठ करके उस अकाल पुरख की बंदगी करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, उन्होंने वडियाई कोई बयान नहीं कर सकता। मिल वेख की महिमा बर न सको, नानक पर भलीला। ते साहिब जी ने बड़ा ही मान बख्शिश किया है, एक पिता एक कस के हम बारिक, एक पिता एक कस के हम बारिक होने का मान मेरे मालिक सतगुरां ने बख्शिश किया है। ते जिहड़े लोग, जिहड़ा समाज, जिहड़ा राजसी हालत है, लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिखदार, जिस समाज के कूड़ का वर्तारा हो रहा है, झूठ हर पासे है, ते गुरु साहिब जी ने बख्शिश की, राजा तख्त टिकै गुणी कै पंचायन रत। राजा तख्त टिकै गुणी पै पंचायन रत। ते बख्शिश की, राजा चुनी लिया। ते गुरु साहिब जी ने हर खेत्र के विच, भावें वो समाजिक खेत्र है,
ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਤਵੰਤੀ ਵਿਦ ਚਰਮ ਕਾ, ਤਤਵੰਤੀ ਵਿਦ ਚਰਮ ਕਾ ਕਣ ਕਾਂਸੀ ਕਾ ਜਾਨ, तत्वंती विद चरम का कण काशी का जान, नाद शब्द नाद घट में बसे सुगर स्वरूप पहचान। भाव एक धुन जिसनों शब्द किया गया है। तो अकाल पुरख वाहिगुरू का हुक्म होया है, जदों परमात्मा का हुक्म होया कि संसार की सिरजना हुई, तो संसार की जिहड़ी धुनी है, गुरु साहिब जी के जो वचन ने कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म तो इस संसार बनया है। तो संसार में जो साउंड है, धुन है, जो तरती साजा के राही आवाज़ निकलती है, उसनू तत कहा जाता है। तो जिहड़ा चमड़े के राही आवाज़ धुन पैदा होती है, उसनू विद आखते हैं। तो जिहड़ा धातु के नाल धातु टकराती है और उसके नाल जिहड़ा शब्द जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है, उस शब्द नूं, उस साउंड नूं जिहड़ा है तत विद ते कण कहा जाता है, उसनूं कण कहा जाता है। ते मिट्टी के भांडियां दे विचों जो साउंड निकलती है, धुन निकलती है, जो शब्द निकलता है, उसनूं जिहड़ा नाद कहा जाता है। ते जिन्ने जीव ने, मनुख, पशु, जिन्ने जिउंदे जीव ने, उन्होंने अंदरों जो आवाज़, धुन, जो शब्द पैदा होता है, उसनूं सुगर कहा जाता है। तो संसार की जिहड़ी उत्पत्ति है उस शब्द तो है। जिवें एक मकान है तो उस मकान के विच दरवाजा है, तो दरवाजा 2 काम करता है, एंट्रेंस ते एग्जिट, अंदर आना ते बाहर जाना। उत्पत्ति पढ़ लो शब्द हो गए, तो उस शब्द के नाल ही परमात्मा के हुक्म के नाल ही जीवां की उत्पत्ति हो रही है, तो हुक्म के नाल ही विनाश हो रहा है। नानक हुक्म अजे पुछे, जदों हुक्म की समझ आ जाती है तो हौमे कह न कोए, फिर कोई हौमे दी गल्लां नहीं करता, सगों निरंकार नाल जुड़ करके उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की सिद्ध करता है। असीं अपने जीवन को किवें सोहना बना सकते हैं। एक छोटा जिहा एग्जाम्पल लईए, कहते एक बीबी ने बहुत सोहना हार पाया है अपने गले के विच, ते पार्टी भी चली गई। हुण उस हार नूं वेख करके उहदी जिहड़ियां सहेलियां ने बड़ी सिद्ध कर रही ने, उस्तत कर रही ने, वाह कितना सोहना हार पाया है, कितना खूबसूरत है, बड़ा महंगा होना है। और वो बीबी बार बार अपने गले पे हाथ ला के देख लेती है कि कितने कोई चोरी तो नहीं करके ले गया, कितने डिगते नहीं गया। उत्थे एक जिज्ञासु बैठा है, अपने मन के विच सोचता है कि हार तू कितना खुशकिस्मत है, कितनी किस्मत वाला है कि देख तेनों गले के विच सजाया है। इत्थे ही बस नहीं, सारे लोग तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। जदों बीबी घर जाती है, इसनूं बड़े ही संभाल के अलमारी दे विच लॉक करके रख देंदी भी कोई चोरी ना करके ले जावे। वे कितनी किस्मत वाला है। अगे वो हार उस जिज्ञासु नूं जवाब देता है कि मेरा जिहड़ा स्वरूप एवें नहीं बन गया। मैं तैनूं दसां, इत्थे तक पहुंचण वास्ते मैनूं की कुछ करना पिया है। मैं तां एक डेली के एक रहणी के रूप दे विच सां, ते मैं चलिया गया सुनियार को। सुनियार ने की किया, मैनूं कुठाड़ी में पा करके थल्लों सेक दिता, इन्ना सेक दिता कि मैनूं पिघला करके पानी वर्गा कर दिता।
फिर इत्थे ही बस नहीं, उसने फिर चंगियां पुआटड़ियां दित्तियां, जिन्नी मेरे अंदर मैल सी ते सारी कट दित्ती। फिर इत्थे बस नहीं, मैनू इस तो बाद एक पतली जी नली दे विच लगाया गया, मैनू एक पाइप दे विच लगाया गया, फिर बाहरों फूका मारियां, फिर जाके मेरा ये स्वरूप बनिया है। जे तू भी सचमुच अपना जो स्वरूप है इस तरह का बनाना चाहता है ना, तो ध्यान रख, तेनू भी सुनियार कोल जाना पेगा, तेनू भी सट खानी पैनी है, तेनू तेरे अंदर जी बेकार है, जी मैल है, तो उस सुनियार ने वो दूर करनी, उत्थे जाकर के तेरा ये जो स्वरूप है वो सोना बन सकता है। गुरु साहिब जी ने पावन बाणी विच सवाल मनुखता के सामने रखा है कि वो सचियारा हुई है कि पूरे टुटे पार। आरंभता दे विच आप जी ने इस शब्द भी श्रवण किया, 38वीं पौड़ी, 38वीं पौड़ी दे विच साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं भी असी पूर्ण सचियार किवें बन सकते हैं, इस स्वरूप सोना किवें हो सकता है। ते सानू भी एक सुनियार कोल जाना पेगा, ते वो दुकान किते दूर नहीं, अपने अंदर ही है। जत पहारा धीरज सुनियार, अपने आचरण को बहुत ही उच्चा लेके जाना पेगा। जत पहारा धीरज सुनियार, धीरज को सुनियार का काम देना पैना है, मन के अंदर धीरज लिया है, आचरण को उच्चा चुकना है, मन के अंदर धीरज लिया है। जत पहारा धीरज सुनियार, एहरण मत। हुण एहरण किनू आखदे हैं? आपां नेट ते बहुत कुछ खोजदे हैं, जे बच्चों को पूछिए एहरण किसनू आखदे हैं तो शायद जवाब नहीं मिलना। एहरण आखदे ने लोहे के टुकड़े जिसते रखे सुनियार सट मारता है। ये एहरण जिहड़ा लोहार कोल भी होंदी है ते सुनियार कोल ते वखरी किस्म की एहरण है। हुण उसके हथौड़े की सट मारता है, एहरण मत। इस मत के ज्ञान का हथौड़ा होता है। जो गुरु के शब्द का ज्ञान का हथौड़ा इस मत से बजता है ना, फिर इस मत के विचों जितनी मैल है वो सारी निकल जाती है। एहरण मत वेद हथियार, वेद आखिर ज्ञान, वेद हथियार। इस टकसाल विच आकर के घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। गुरु के शब्द के द्वारा इस सच्ची टकसाल के विच ही साडी घाट हो सकती है, असीं सच्चियार बन सकते हैं। घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। ते जिहड़े इस दुकान ते आए ने ते हवाले किया गुरु शब्द के, नानक नदरी नदर निहाल, ते गुरु साहिब जी ने फिर उन्होंने बख्शिशा कीतियां, वो सोहने जीवन वाले बन गए। वो फिर विकारों वालों डुबदे नहीं, सगों तर जाते। गुरु साहिब जी समझावना करें प्यारे, जे भी तू इस भव सागर को तरना चाहता है ना, तो गुरु के शब्द ते गुरु के दर ते तेन आना पड़ेगा। गुरु ही एक ऐसा मल्ला है जरा तेन इस भव सागर को पार लगा सकता है। जे को तारू पान, गुरु साहिब जी के बचन, जे को तारू पान ताहू कुछ तिरन कर, जे को तारू पान ताहू कुछ तिरन कर। उन्होंने कोल जाच सिख, कल आखते ने जाच, जे को तारू पान को तरना चाहता है, इस भाव सागर को पार करना चाहता है, अपने जीवन को सफला करना चाहता है, तो ध्यान रखो, जे को तारू पान ताहू कुछ तिरन कर, ताहू खरे सुजान मन्या ऐनी कबरी, झड़ चखड़ कोहाड़ लहरी वहन लखे सही। जिवें संसार में वेखते हैं समुद्र के विच बहुत सारिया लहरां उठदियां, झड़ है झक्खड़ है, पर जिवें तरना जानते ने वो इस भव सागर तो तर जाते हैं। वो इस भव सागर तो तर जाते ने ते उन्हां गुरमुखां दी तू संगत कर, तू भी तर जावेगा। जे को तारू पार ताहू कुछ तिरन कल, उन्हां गुरमुख प्यारियां कोल आकर के जाच सिख, ताहू खरे सुजान, क्योंकि उन्होंने जाच आउंदी है।
वंजा इन्नी कपरी वो इस भाव सागर तो आप भी तरते ने ते तेनू भी तार लेनी है। जे ध्यान रखे तू कच्चे पुल को चला गया कि बहुत सारे ऐसे कचड़े पिल्ले ने जिन्हें अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लिबास भी बहुत सोहना पाया है, गले दे विच माला भी पाई है, हत्थां विच माला भी पाई है, ते लोग जिहड़ा सचमुच गुरु समझ करके उसके कोल चले जाते। जेकर तू इहो जिहे लोकां कोल चला गया तो साहिब जी समझावना करे ने आप डूबे चौबेद में चेले दिए बहाए। वो आप तो डुबदे ही हन नाल अपने चेलियां नूं भी डुब लेंदे हैं। सो ध्यान रखो तेनू ये परख आनी चाहिए। जेकर तू इहो जिहा कोल चला गया तो आप ते डुबणगे ही नाल तेनू भी डुब लेणगे। सो साहिब जी बख्शिश कर रहे ने ताहू खरे सुजान वंजा एनी कपरी चढ़ चखड़ ओ हाड़। जिवें समुद्र विच चढ़ है, चखड़ है, लहरां ने, इसी तरह साडे जीवन दे विच भी विकारां दीयां लहरां ने। किते काम, किते वासना, किते क्रोध, किते मोह, किते लोभ, ये पंज विषय विकार बार बार आकर के हावी होंदे ने। जे तू गुरु के दर ते आ गया फिर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जे उन्हां दी सचियारा दी संगत विच आ गया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ताहू खरे सुजान वंजा एनी कपरी चढ़ चखड़ ओ हाड़। लहरी बहन लखी सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबड़ नाही। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਉ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाई। मेरा सतगुर तो हमेशा है, अज भी है, कल भी सी, आगे भी मौजूद रहेगा। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाई। वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए, वो सारे मौजूद है। शब्द नूं गुरु धारण कर, तू गुरु वाला बन। जितने तू गुरु वाला बन गया, गुरु धारण कर लिया, तेरा जीवन इस सफल हो जाना है। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं बाणी गुरु, गुरु है बाणी, एक शब्द ही गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी। सारी तो भाव बहुत ज्यादा नहीं, सारी तो भाव नाम रूपी अमृत नूं इस पावन बाणी ने संभालिया होया है। विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। सो ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहिता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਫਲ ਮਨ ਵਾਛੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, जो भी तू चाहता है, जितने फल मन वाछियां हैं तितड़े सतगुर पास। गुरदाता गुरु दाता है, गुर हिवै कर। गुरु जेड़ा है वो ठंडक दा सोमा है। तेरे अंदर जिहड़े विकार ने ना, जिहड़े सड़दे पए ने, गुरु साहिब जी शांति बख्शिश करते हैं, ठंडक बख्शिश करते हैं। गुरदाता गुर हिवै कर। गुर दीपक, गुरु दीवा है। जिवें एक दीवे तो सैकड़े दीवे तैयार होते हैं, इसी तरह गुरु भी एक दीवा है। गुरदाता गुर हिवै कर, गुर दीपक तह लोए। अमर पदार्थ नानका मन माने सच होए। तो सच में गुरु दर से आकर के चौधरी के घर गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं कि भाई सचमुच
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮਨਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਣਦਿਨ ਸੁਕਰਤ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਣਦਿਨ ਸੁਕਰਤ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਗੋ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਹਸੰਦੇ ਆ, ਖੇਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਖਾਵੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਖਾਵੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਭੌਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਵਰੇ ਹੋ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਮੰਤਰਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਪ੍ਰਣਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਣਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।